ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार,
व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छोड़, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि समय। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग and good afternoon and good evening, as you all have been connected from different parts of the world. देश विदेश के अलग अलग कोनों से कनेक्ट हुए सभी भाई बहनों को इस यूनिक प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत दिल से स्वागत है। लेगोस इनवाइट्स एंड लेगोस प्रेजेंस ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित ये training program, a special program in Srimad Bhagavad Gita, the most auspicious and mother of all scriptures, a study on one God and universal brotherhood. इस विषय में एक आध्यात्मिक चिंतन, एक आध्यात्मिक स्टडी करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार Basavaraja Bhaiji, all the way from Karnataka, is connected to us. Let's say hello to him. जो भी है अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी, एक हाथ की भी ताली बजा सकते हैं और भाई जी को वेलकम करेंगे। ओम शांति। भाई जी आप अपने गैलरी व्यू में देख सकते हैं। इस सभा में लेगोस से, लंदन से, घाना से, भारत से कनेक्टेड है। आगे की जर्नी में शायद हम कई आत्माओं को देख सकते हैं। Those who are seeing Bhaiji for the first time, a humble introduction of this versatile and powerful God's instrument
is like this. भाई जी की qualification academically BSc Agriculture, MA in Philosophy, MSc in Value Education and Spirituality. He has done his PhD in Philosophy from Karnataka University, Dharwad, Karnataka. He also has done his PhD in Bhagavad Gita from Mysore University, Karnataka, from Mysore. And at present, he's a director of instructions, values, spirituality, and yoga education cum training center for Karnataka State School Teachers, Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, JC Nagar, Hubli, Karnataka. He took birth on 5th of October 1941 in Hemapur village, Magadi Taluk of Ramnagar district, and having a fortunate, blessed child from the parents, Shri G. Siddhagangaya and mother, Srimati Rudranamma. And he's an activist, also social activist. He's a president of National Sports Wing, Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi. He's vice president of International Congress of Social Philosophy, Dharwad, and also vice president of Karnataka Darshan Parishad, Dharwad. He's an ex-member of Board of Studies, Philosophy, Karnataka State Open University, Mysore, governing body member, Raj Yoga Education and Research Foundation, Mount Abu. He's also a member for National Working Committee, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, Mount Abu. And he's a director for Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, Hubli Subzone, founder director, Moral Spiritual Yoga Education and Training Center, Brahma Kumaris Tapovan, Yellapur, Karnataka State. Is an honorary editor, Vishwanava Nirman, Spiritual Kannada Monthly Magazine, Hubli, Karnataka. And he also has banked so many distinguished awards. And I would like to I don't want to compromise by restricting any of the information because इतनी परिचय बनने में समय लगते हैं, अरसे लगते हैं, मेहनत लगता है और इसमें पूरी समय का, संगठन का, परिवार का और परमात्मा का ब्लेसिंग सहयोग से ही इतना सुंदर भव्य पावरफुल परिचय बनता है. भाई जी को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है and he is honored by Rajyotsava Award from Karnataka State Government in the year 1998 and also Kuvempu honored by Kuvempu Vishwa Manava Award and is honored by Dhimant Prashasti from Hubli Dharwad Municipal Corporation, honored with Vocational Excellence Award by Rotary International District 3170 and is honored with Molya Shikshana Mahantudu Award, Molya Shikshana Mahantudu Award from Mandal Karyalaya, Emiganur, Andhra Pradesh State. He is honored with Manaviya Molyagala Sanchari Shikshak Prashasti by Shri Jagatjyoti Basavar Jayanti Utsav Samiti, Hubli and Veerashaiva Sangatana Samiti, Hubli. Honored with Molya Shikshana Harikar Prashasti by Annigeri town citizens. Dr. B.K. Brahma Kumar Basavaraj Raj Rishi is also an author, a research scholar, a well-known speaker and a trainer. He has given many programs, lectures and interviews on TV, radio and in print media. As per his valuable guidance, the feature film Shiva Yogi Akka Mahadevi produced. He visited many countries to spread spiritual, moral and yogic knowledge for the welfare of the humankind. As you heard, such nice elaborate introduction of our eminent speaker of today. He is from Karnataka, so you all know that he can speak very well of Kannada. But today he will be delivering the session in Hindi, for which we have organized technically an English interpreter. I also take great privilege in welcoming our special interpreter, Sister Brahma Kumari Geeta, all the way from London. Thank you for offering your services and your time. And I'm sure that without delaying, we should listen to him. Today's special session is going to be more on introduction based. And also we're going to see some visuals, some clippings, which will help us to learn. सबसे पहले आप सबके पास बुक है ना? बुक है सबके पास? पेन है? एक्सेलेंट, क्योंकि
मेरे पास भी मैंने रेडी रखा है डायरी मेरी और फिर पेन, इसके साथ है ना स्टडी हमारी संपन्न होती है। तो सभी को मैं ईश्वरीय स्टूडेंट्स, टू ऑल द गॉडली स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट्स वेलकम ब्रह्मा कुमार बसवराज भाई जी with the flowers all the way from Lagos। अपना अनम्यूट कीजिए मीनल बहन, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नमस्ते सभी भाई बहनों को। मीनल बहन अनम्यूट कीजिए, भाई जी बात कर रहे हैं, आपका जल्दी आप। सिस्टर ऑल को से हेलो। बाप दादा का स्मृति में सभी भाई बहनों को प्रणाम है। दीदी ने भगवद गीता का ट्रेनिंग के लिए आयोजन किया है। ये ट्रेनिंग का एम क्या क्या है आपका सामने मैं ट्राई करेंगे हिंदी में विवरण करने के लिए। आप जैसे फॉरेनर्स है, भाषा के कारण हम लोग भी साउथ वाले, कर्नाटक वाले हिंदी की स्पीकिंग में फॉरेनर जैसे हो गया है। बाप दादा आशा रखा है भगवत गीता का भगवान ईश्वर है। ईश्वर के द्वारा ही भगवत गीता प्रस्तुत है, इसको सिद्ध करने के लिए। दूसरा एम है भगवत गीता का भगवान ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम निवासी है। तीसरी बात यह है भगवत गीता का बोध हिंसात्मक नहीं है, अहिंसात्मक है। चौथी बात यह है संगम युग में बाप दादा हम बच्चों को जो सच्ची गीता सुनाया है, आत्मानुभूति, आत्मानुभाव, आत्मयोग, साथ साथ ईश्वरानुभूति, ईश्वरानुभव और परमात्मा योग, जो भक्ति की गीता में ये बात को हम लोग बहुत इजी से सिद्ध कर सकते हैं। बाप दादा जो अपना अमर वाणी में हम लोगों को बताया है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, मानव से देवता बनते हैं। ऐसे नहीं है जो चार्ल्स डार्विन जो सिखाया है विकासवाद, एवोल्यूशन थियरी,
एकाणुजीवी से बहुअणुजीवी, नॉन वर्टिब्रेटा से वर्टिब्रेटा, असस्तनीय से सस्तनीय प्राणी, मंकी टू मैन, ये तो शरीर के सिद्धांत है। ये तो आत्मा के ज्ञान के अनुसार बाबा ने हम लोगों को ये सिद्ध किया है, सिखाया है। मानव आत्मा कभी भी प्राणी नहीं बनेंगे, मानव आत्मा देवमानव बनेंगे। शिव बाबा हम लोगों को कर्मा फिलॉसफी को सिखाया है, राजयोग सिखाया है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में कलयुग परिवर्तन बनकर सतयुग बनेंगे। ऐसे मुख्य मुख्य ईश्वरीय नॉलेज को भगवत गीता के द्वारा कैसे हम लोग सिद्ध कर सकता है, ये ट्रेनिंग में मुख्य बात होता है। हुबली में बाप दादा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, सिर्फ भगवत गीता का बारे में ट्रेनिंग देने के लिए। इसके साथ साथ बाबा ने ये भी बनाया है 108 स्टॉल के द्वारा भगवत गीता का सारी नॉलेज जो है ईश्वरीय नॉलेज के अनुसार एक मुख्य म्यूजियम बनाया है। कम से कम 3-4 घंटा इसको देखने के लिए चाहिए। ऐसे बाबा का, बाप दादा का जो मुख्य आशा है, आज्ञा है, इसको भगवत गीता का द्वारा हम लोग बहुत इजी से सिद्ध कर सकता है। इसके जो चाहिए रेफरेंसेस ऑफ द भगवत गीता टेक्स्ट, इसी ट्रेनिंग में हम लोग उपयोग कर सकता है। साथ साथ सीख भी सकता है। बाप दादा बताया गया है भगवत गीता का भगवान का सिद्ध करने के लिए जो
सेवा है, सेवा क्षेत्र में वो लास्ट सर्विस है, ईश्वरी सर्विस, ऐसे भी भाव बताया है। ऐसे जो मुख्य बात है, बाबा का वर्शंस को प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये ट्रेनिंग हम लोगों को मदद करेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूं। भगवद गीता का जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में जो भी आदि सनातन देवी देवता अंश वाले प्रेरणा लेंगे, पॉजिटिव वे से ये ट्रेनिंग में विद्वज्जनों को, भगवद गीता भक्तों को मैं आशा रखता हूं सच्ची मार्गदर्शन मिलेंगे। आज तो प्रथम दिन है, मैं आपको एक श्लोक को आपका सामने रखने के लिए मैं प्रयत्न करेंगे। भगवद गीता का ये श्लोक है, अध्याय 2, श्लोक का नंबर 16। ना सतो भावो विद्यते, ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयोदर्शिभिः। ये श्लोक में जो ईश्वरीय नॉलेज है, भगवद गीता का सार है, इसमें हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा सकता है। ये सृष्टि को नेचर कहेंगे। ये नेचर में पंचभूत है, एक है वाटर, दूसरा है मैटर, तीसरा है एयर, चौथे है फायर, पांचवा है स्पेस। ऐसे पंच महाभूत बोल के दार्शनिक विभाजित किया है नेचर को। साइंटिस्ट जो है, ये नेचर को 3 भाग किया है। एक है घन वस्तु,
दूसरा है द्रव वस्तु, तीसरा है अनिल वस्तु। आप ये चित्र में ये देख सकता है, पंचभूत वाटर है, मैटर माना अर्थ है, फायर भी है, एयर भी है, ये स्पेस में ये सम्मिलित है, ये नेचर है। जो नेचर में हम लोग देख रहा है, सेम पंचतत्व जो है, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होता है, पंच तत्व द्वारा ही बना है। गीता अध्याय 2 श्लोक 16 में यही कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। दो प्रकार की वस्तु है, एक है सद्वस्तु, दूसरा है असद्वस्तु। ये नेचर में है। According to the spiritual knowledge, सद्वस्तु माना परमात्मा और आत्मा होता है, असद्वस्तु माना जो पंच तत्व है वो होता है। जो आत्मा और परमात्मा है वो अविनाशी है, अनादि है। जो पंच तत्व होता है इसको परमानेंट अस्तित्व नहीं है, ये अपना रूप को परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए ये सारी जो हम लोग दुनिया में विश्व में नेचर को देखते हैं वो तो परिवर्तन होते रहता है, एज इट इज नहीं रहेंगे। ऐसे ही पंचतत्व के द्वारा जो शरीर बन गया है वो शरीर भी एक नेचर है। ये शरीर भी एज इट इज नहीं रहेंगे, कालानुक्रमेण परिवर्तित होते रहता है। ये शरीर जो इसको परमानेंट अस्तित्व नहीं है, जो आत्मा है शरीर में विराजमान है वो परमानेंट अस्तित्व में होता है, अविनाशी होता है, अनादि होता है। ये दोनों बातों को वयोरोपि दृष्टान्तः अनयोः तत्वदर्शिभिः, जो स्पिरिचुअलिस्ट है, जो तत्वज्ञानी और दार्शनिक है, वो तो इसको विस्तार रूप से समझा सकता है। इस श्लोक के अनुसार कैसे ये साइंटिस्ट लोग
इस साइंस द्वारा ये प्रकृति को, नेचर को समझा है। मन आप जानते हैं ये प्रकृति में एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है एयर फॉर्म। इसको साइंटिस्ट ने डीप स्टडी करके हंड्रेड एंड 3 एलिमेंट्स रूप से डिवाइड किया है। जो एलिमेंट्स है आप ये चित्र में देख सकते हैं। जो 103 एलिमेंट्स है इसमें 11 गैस फॉर्म में है, तो बलून रूप से दिखाया है। 90 सॉलिड फॉर्म में है, घन वस्तु। 2 है वो लिक्विड फॉर्म में है। जो ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को फिर विज्ञानी ने मॉलिक्यूल माना अणु, नेक्स्ट ये अणु मॉलिक्यूल को डिवाइड करके परमाणु, एटम ऐसे डिवाइड किया है। ऐसे टोटली इस सृष्टि को विज्ञानी ने ऐसे ऐसे डीप में स्टडी करके वर्णित किया है। ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स वायुमंडल में नेचर के अनुसार मिक्स होता है। इसको कहेंगे संयुक्त वस्तु। जो मूल वस्तु है 103 एलिमेंट्स, वो मिक्स होके संयुक्त वस्तु बन गया है, एक कंपाउंड एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो पानी है, विज्ञानी ने ये कहेंगे H2O, तो दार्शनिक बोलता है पानी। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। ऐसे सारी जो भी उपयुक्त वस्तु हम लोग देख रहे हैं, ग्लूकोज है, नमक है, शुगर है, सोप है, गैस है, सारी मिक्स होके संयुक्त रूप से हम लोग यूज करते हैं। इसलिए इस श्लोक में ये कहा है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो असद वस्तु है वो तो परिवर्तन होते रहता है, उसको परमानेंट अस्तित्व नहीं है। सद्वस्तु जो है परमात्मा और आत्मा हमेशा अपना मूल स्थिति में ही रहेंगे। ऐसे सारी ये नेचर को, नेचर का रियलिटी को
गीता बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। हमें फर्स्ट पिक्चर में देखा है, वो फर्स्ट पिक्चर में पहले प्रकृति नेचर हो और बॉडी जो हो, ये 103 एलिमेंट्स के द्वारा ही बन गया है। बॉडी को भी नेचर कहेंगे, तो प्रकृति को भी नेचर कहेंगे। दोनों है नेचर है। ये दोनों भी अपने अपने समय पर अपना अस्तित्व को, अपना रूप को परिवर्तन करके ये नेचर चल रहा है। जो बॉडी में आत्मा है वो स्वतः वस्तु है, नेचर है ना, स्वतः वस्तु है। इसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहेंगे, स्पिरिचुअल पावर कहेंगे। यह है परमानेंट अस्तित्व है इसको, बॉडी को अस्तित्व नहीं है। बॉडी चेंजेस होते रहता है। बेबी है, यूथ है, अडल्ट है, ओल्ड है, ये सारी प्रकृति बॉडी परिवर्तन होते रहता है। बाद में डेड बॉडी हो जाता है, परंतु ये शरीर में अंदर जो आत्मा है वो तो परमानेंट है। वो तो ना बुढ़ा है ना बच्चे है। इस श्लोक में यही कहा गया है। ये सारी ज्ञान को स्पिरिचुअलिस्ट व फिलोसोफर्स जान सकता है। बाबा भी हम लोग बच्चों को इन डिटेल इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग होने के लिए अपना मुरली में हम लोगों को सिखाया है। ये सारी नेचर को बहुत साइंटिस्ट ने वेरी वेरी डिफरेंट रूप से इसको कहा जाता है। इसमें फिजिक्स है जो एलिमेंट्स को प्रस्तुत किया है। दूसरा लोग है केमिस्ट। तीसरा लोग है बायोकेमिस्ट। चौथा लोग है बायो फिजिक्स मना बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो प्रकार है, एक है बॉटनी सस्यशास्त्र, दूसरा है जूलॉजी प्राणिशास्त्र। आप ये चित्र में देख सकता है, नीचे जो है एलिफेंट है, तो एस है, व्यक्ति है, ट्री है, प्लांट्स है, सब कुछ है। ये तो सजीवी है। इसकी शरीर जो है लिविंग सेल के द्वारा ही बना है।
जो लिविंग सेल में दो प्रकार है, एक प्लांट सेल्स, दूसरा है एनिमल सेल्स। जो भी सेल होता है लिविंग सेल, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है प्राणी शरीर के सेल में। प्लांट शरीर के सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं ये न्यूक्लियस में जो वंशवाहिनी है वो होता है। जो वंशवाहिनी में अपना अपना बॉडी को प्रेजेंट करने के लिए जो भी जीन्स चाहिए वो होता है। क्रोमोसोम्स में जीन्स होता है। ये जीन्स के द्वारा प्राणी प्राणी ही होता है, सस्य सस्य ही होता है। ये बहुत सुंदर बात है। एलिफेंट्स का लिविंग सेल में जो जीन्स है, नेचर के अनुसार नेक्स्ट बर्थ में वो एलिफेंटे बनेंगे। मानव का शरीर में जो जीन्स है वो मानव ही बनेंगे। प्लांट का बॉडी में जो जीन्स है वही प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, कोकोनट ट्री, जो भी हो वो सेम टू सेम बनेंगे। उसमें आत्मा नहीं है प्लांट बॉडी में, क्योंकि वो असद वस्तु है। गीता बोल रहे हैं ये सद्वस्तु जो है वो है एनिमल बॉडी में होता है। सद्वस्तु माना सोल, आत्मा। कुछ लोग ऐसे भी मिसअंडरस्टैंड किया है, प्लांट बॉडी में भी आत्मा है ऐसे बोल रहे हैं, परंतु वो लिविंग सेल है प्लांट बॉडी में, आत्मा नहीं है। आत्मा कहां होता है? माना जो लिविंग सेल में बॉडी निर्मित हुआ है, लिविंग सेल के द्वारा बॉडी निर्मित हुआ है, वो हर एक प्राणी शरीर जो होता है उसमें ब्रेन है। कहां ब्रेन है उधर सद्वस्तु माना आत्मा होता है। कहां ब्रेन नहीं है उधर आत्मा नहीं होता। अभी आप वर्तमान समय में कोरोना कोविड-19 देख सकता है। वो तो जीवी नहीं है, सारी आत्मा नहीं है, सिर्फ ये इसको लाइफ कहेंगे। परंतु जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ये इसमें आत्मा नहीं है। जो प्राणी शरीर में ब्रेन सिस्टम है उसमें भी आत्मा उपस्थित होता है। जो वैरायटी प्राणी होता है, वैरायटी आत्मा उसी शरीर में वही होता है। इसलिए सद्वस्तु प्राणी शरीर में होता है। शरीर तो परमानेंट नहीं होता है, आत्मा परमानेंट होता है। आत्मा शरीर छोड़ के फिर दूसरा वही जनरेशन में जन्म लेता है, वंश में जन्म लेता है। ये बॉडी एक दिन डेड हो जाता है। आप ऊपर के पिक्चर में देख सकता है, जो भी प्राणी होता है, ये शरीर है, ये डेड सेल हो जाता है।
तब उसका अस्तित्व बदलाव चेंजेस हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में हमें एक श्लोक में इतना प्रकृति मन नेचर को डिटेल स्टडी करने के लिए विज्ञानी भी प्रयत्न कर सकता है, तो सामान्य दार्शनिक प्रयत्न कर सकता है। परंतु ये जड़ जीव हो सकता है, जीव जड़ हो सकता है, शरीर जड़ हो सकता है, फिर पंचभूत से जो शरीर निर्मित हो सकता है। ये जड़ और जीव भेद है। जड़ शरीर में आत्मा नहीं होता, डेड बॉडी में आत्मा नहीं होता, आत्मा शरीर छोड़ के बाहर आ जाता है, उसको बोलेंगे सद्वस्तु, बाहर आ जाता है। जड़ वस्तु अपना ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ के नेचर में मिक्स हो जाता है। इसलिए आज ये श्लोक लेकर हम लोग नेचर को, शरीर को, आत्मा को तीन प्रकार रूप से हम लोग इसको डीप स्टडी कर सकता है। मैं समझता हूं अपना भाई बहने बाबा के मुरली के अनुसार इसी नॉलेज को बहुत अच्छी रीत से समझ गया है। इस श्लोक को यूज करके, कंठस्थ करके, इसका मीनिंग को सीख के अपना अपना प्रवचन में इन डीप नॉलेज को अपना जो भी एडवांस परिवार आने वाला है, भक्त लोग है, ज्ञान में आने वाला है, सबको नॉलेज दे सकता है। साइंस के द्वारा भी दे सकता है, तो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा भी हम लोग ये नॉलेज को बांट सकता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, जो आपका सामने रख रहा हूं, इसको बुक फॉर्म भी बनाया है मैंने, इलस्ट्रेटिव फॉर्म, इलस्ट्रेटिव रूप से बुक भी छपाया है। हर एक श्लोक को लेके उसको पिक्चराइज बना के मल्टी कलर से उसको प्रिंट किया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी उसमें लिखा है। फर्स्ट हम लोग कर्नाटक का स्टेट गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दिए थे। ये ट्रेनिंग के लिए मैं ये बुक बनाया। कम से कम 27 इयर्स कर्नाटक गवर्नमेंट यल्लापुर रिट्रीट सेंटर में अपना स्कूल टीचर्स को डेप्यूट किया। ये यल्लापुर नहीं है, ये तो हुबली का ट्रेनिंग सेंटर है, भगवत गीता का ज्ञान लोक है। यल्लापुर पिक्चर आप लोग नहीं डाला है। तो उधर 21 डेज गवर्नमेंट ने टीचर को, अपना स्कूल टीचर्स को, हाई स्कूल टीचर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स को डिप्यूट किया है। उधर हम लोग 21 दिन उन लोगों को बाकायदे ईश्वरी नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को डिफरेंट सब्जेक्ट बना के हम लोग ये ट्रेनिंग दिया। ये ट्रेनिंग लेकर अपना स्कूल टीचर्स अपना अपना स्कूल कॉलेजेस में अपना विद्यार्थियों को वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को तो प्रसार किया। इसलिए ऑलमोस्ट कर्नाटक में कम से कम नियरली 20,000 का ज्यादा स्कूल टीचर्स को हम लोग बाबा के कृपा से 21 दिन के बैच के अनुसार 1991 से 2016 तक हम लोग ये ट्रेनिंग दिया। सभी धर्म वाले इसमें आए थे, परंतु हम लोग ऐसे सिलेबस बनाया सभी धर्म वाला इसको एक्सेप्ट करे। हम लोग भी भगवत गीता के द्वारा कोई धर्म हो,
सबको, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन है, बौद्धिस्ट है, सिख है, इस्लामिक और क्रिश्चियन, ये सारी स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए वैल्यू एजुकेशन रूप से हम लोग अपना अपना स्कूल से टीचर जो आया उसको ट्रेनिंग हम लोग अभी दिया। ये बहुत आशा है भगवद गीता के हर एक जो श्लोक है चाहिए हम लोगों को, वो श्लोक लेके हम लोग बाबा का ज्ञान को प्रेजेंट कर सकता है। आप जानते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोक है। वो सारी श्लोक को कंठस्थ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रिपीटेशंस बहुत होता है, उसमें कंफ्यूजन्स भी बहुत होता है। इसको हम लोग अपना एक दृष्टिकोण से रिसर्च किया है। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, परमात्मा, इसका दान, इसका कर्तव्य, इसका अवतरण, ऐसे कुछ हम लोग स्पेशल सिलेबस बना के हम लोग इसको सिखा सकता है। अपना जो भी भाई बहनें हैं, मेरे भाई बहनों को मैं विनती करता हूं, जो हर एक सैटरडे संडे प्रोग्राम दीदी ने आयोजित किया है, मैं ट्राई करता हूं अपना बटलर हिंदी में जितना हो सके उतना नॉलेज को शेयर कर सकता हूं आपके साथ। धन्यवाद। दीदी, आपको विशेष धन्यवाद है। जो भी गीता नॉलेज के द्वारा अपना भाई बहन इच्छुक है उसको सेवा करने के लिए मेरे को एक मौका दिया, आपको विशेष धन्यवाद है। ओम शांति। थैंक यू सो मच बसवराज भाई, आपने इतना सुंदर तरीके से और इतनी स्पष्ट तरीके से और सब प्रकार के छोटे छोटे संशय जो है ब्राह्मणों में भी, वो सब बड़े प्यार से आपने क्लियर किया। एंड आई अपोलोजाइज फॉर वन रीजन, टेक्निकली जो ट्रांसलेशन है वो अभी नहीं हो पाया, परंतु वी हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन और इसको ट्रांसलेशन ऑडियो का आप सब तक जल्दी पहुंच जाएगा। एंड वी हैव सॉर्टेड आउट, हमारे बीच में चंदन भाई है, ही हैज कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम पुणे। Chandan Bhai is an expert who is dealing with interpretations in this particular app Zoom. So I thank Chandan Bhai also for giving his time, and certainly we are working on to resolve all these issues. And Geeta Ben will give her service in translation from tomorrow onwards. और आज का भी वो translate करेंगे, उन्होंने record किया हुआ है। Thank you once again भाई जी। और कई आत्माओं ने भेजा है और गीता बहन खुद कहते हैं कि थैंक यू भाई फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई वी से दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। जिगीशा बहन कहते हैं थैंक यू भाई जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई एम श्योर सबके दिलों की शुक्रिया, धन्यवाद आपके लिए सभी दे रहे हैं। भाई बहन जो गीता के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सेवा को बांटने के लिए सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। भाई जी आपका बटलर हिंदी नहीं है, बटर हिंदी है, बहुत ही बटर वाली हिंदी है। आपको तारीफ करता है, हमने भाई बहन बटलर हिंदी बोलता है, हमें नहीं। नहीं, इट इज वेरी क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है। आई एम श्योर किसी को कुछ बोलना है अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, 2 शब्द ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करके बोल सकता है। वेरी गुड, वेलकम कमलेश बेन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू मे प्लीज टॉक। थैंक यू भाई जी। आई वुड लाइक यू टू रिपीट ये वाला जो श्लोक है फिर से एक बार, ताकि जरा मैं ध्यान से देख सकूं इसको। यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, नो डाउट अबाउट दैट, पर हमें संस्कृत नहीं आती, तो आई नो यू एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड एज वेल, पर अगर आप एक बार रिपीट कर दें फिर से पूरा श्लोक। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। सतो विद्यते भावो
ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयो तत्वदर्शिभिः। ये श्लोक है। तो अध्याय 2 श्लोक श्लोक 16। हाँ जी 16 ठीक है, थैंक यू। 16 श्लोक अध्याय 2। हाँ जी। ये 2 बुक्स है, वो तो हिंदी में भी छपा है। इसमें जो भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकता है, इसमें ईश्वर के बारे में दूसरा बुक भी है, वो तो आत्मा के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन का। तो उसका नाम है तो एक्सरे ऑन भगवद गीता ऑन गॉड। दूसरा है स्कैनिंग ऑन सोल थ्रू भगवद गीता। तीसरा जो है ये बुक है, ये पीएचडी की जो होता है भगवद गीता के भगवान ईश्वर, इसका नाम है। बाबा ने जो बोला वही सब्जेक्ट हम लेके बहुत बाबा की कृपा से प्रयास करके ये पीएचडी प्रेजेंट हो गया। तो भगवद गीता के भगवान ईश्वर, उसके अवतार और कर्तव्य, बाबा के नॉलेज में जो चाहिए हम लोगों को सारी 100% वो इसमें है। ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है, बाद में आप सबको भेज देंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, धन्यवाद धन्यवाद। इट्स वेरी नाइस। आप सबके उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए एक विशेष सूचना है कि ये जो सेशंस ये कंटिन्यू चलेंगे। भाई जी के सिलेबस के हिसाब से इट इज 50 आवर्स। तो सैटरडे संडे ही हम सभी मिल सकते कर सकते, परंतु धीरे ही सही पर धीरे धीरे हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये स्वयं के ऊपर भी विजय प्राप्त करना है और दूसरों को भी मदद करना है, क्योंकि सबके सब परमात्मा की रचना है और सभी विजयी रतन है। और इस वजह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सबको मुबारक हो। और रेगुलरली जो अटेंड कर रहे हैं और उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो उन सब के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। सो यू ऑल विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑन योर नेम from Brahma Kumaris. So it is just to encourage you, that's all. Otherwise तो सर्टिफिकेट कोई क्या दे सकते हैं, ये सीखने की बातें हैं, धारण करने की बातें हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं। ओके कोई पूछ रहे हैं, बिंदु बहन पूछते हैं कि ये बुक्स कहाँ अवेलेबल है। एंड आई एम श्योर ये बुक्स हुबली सेंटर में तो है ही, मधुबन में भी अवेलेबल हो सकते हैं। एक स्पेशल रिक्वेस्ट से इट कैन बी कुरियर टू यू। जैसे हमने इसको पूरा लिया है, आई हैव आस्क्ड फॉर दीज बुक्स एंड वानी बहन ने उसको कुरियर किया है। सो इट इज पॉसिबल दैट आप भी ये कुरियर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट। ये बुक्स हिंदी में है, जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो जरूर इसका लाभ ले सकते हैं। और आप सबके सहयोग से, उमंग उत्साह से ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होने की संभावना है। करेंगे कर रहा है, हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर द गुड न्यूज। सक्सेस इज अ बर्थराइट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस एंड थैंक यू ब्रदर फॉर मेकिंग टाइम एंड हैविंग पेशेंस। सभी 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे। सबको तो थैंक यू किया, पर अगर उसको थैंक यू नहीं किया, जो ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बनाया और कोई नेट के डिस्टरबेंसेस भी नहीं आया, और हम सब प्यार से शांति से सुने हैं भाई जी को। सो थैंक्स टू गॉड। सो एक गीत बजाएंगे सिस्टर, शुक्रिया वाला। भाई जी से दृष्टि भी लेंगे। सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि भाई जी भी आपको देखें।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। Legos presents and invites for a unique and a special training program in Srimad Bhagavad Gita. इसका लाभ लेने के लिए आपको सिर्फ सैटरडे और संडे कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो जूम लिंक में कनेक्ट होना है, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और बुक और पेन बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल फिर हम मिलेंगे और ही गहरी बातों के ऊपर राजों को भेद करने के लिए हमारे साथ भाई जी ब्रह्मा कुमार, राज ऋषि, राज योगी, Basavaraj Bhai, all the way from Karnataka. He will be connected to us. So thank you for being connected and all the best and enjoy this wonderful spiritual journey. Om Shanti.